Okay, class. How are you all? Fine, ma'am. How are you? I'm fine. Okay, should I start now? लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट थे प्रेजेंट तुम्हारे? अभी 18 प्रेजेंट है. Okay, we can wait for 2 minutes, then I'll start. Today we'll study about forage crop. Okay, I'm showing you your syllabus. Can you see this screen? Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, so I'm showing you your my syllabus. This is your syllabus. So we have completed our sugarcane, mentha, lemongrass, citronella, palmarosa, and तुम्हारा aromatic crops में एक plant बचा है, that is isabgol, that we will complete. So potato and tobacco भी तुम्हारा हो चुका है. Today we will start forage crops. ये जो मैंने pink mark किया है, that is berseem. First we'll start from berseem. And then if we will have time, we will try to complete Lucerne, but I don't think it time hoga. So first we'll study about Barsim. So any idea what you mean by forage crops? Forage crops की meaning. Forage means चारा. Food and fodder जो हम use करते हैं animals के लिए, these crops are known as forage crops. I have one YouTube चैनल, उसमें मैंने एक तुम्हारा फोरेज क्रॉप है, उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई. यू कैन ऑल्सो विजिट देयर, आई विल शेयर यू द लिंक. बट टुडे वी विल फोकस ऑन बरसीम. सो आई एम शेयरिंग यू द प्रेजेंटेशन. दिस इज अबाउट बरसीम. किसी ने मींस किसी के घर पे बरसीम की खेती की जाती है? कोई मींस जिनके फील्ड्स हों? ओके. सो बरसीम, बरसीम का जो बोटेनिकल नेम होता है, दैट इज ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम. क्लास, एम आई ऑडिबल? बीच बीच में यस भी बोलते रहना, नहीं तो मुझे लगेगा मैं खुद से बात कर रही हूँ. ओके, सो बरसीम का जो बोटेनिकल नेम है, दैट इज ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम. So first, we will explain about Berseem. Berseem Trifolium alexandrinum is an annual leguminous fodder crop. This is an annual leguminous fodder crop. Leguminous means ये family जो है leguminaceae से means belong करती है, and this is a type of fodder crop जो animals है उनके food and feed and fodder के लिए use होती है. And its botanical name is Trifolium alexandrium, and this is annual leguminous. Annual, there are two type of crops, annual and perennial. So perennial जो है वो साल में 2 बार होती है, and annual means once in a year. So it is one of the most suitable fodder crop for areas below 1700-meter altitude with irrigation facility. So it is a one of the most suitable fodder crop for areas below, means sea level should be 1700-meter altitude, and irrigation facilities should be good. It requires good irrigation facilities. तो इसके जो सिंचाई है, जो इरिगेशन है, वो अच्छी होनी चाहिए. एंड इट रिमेन्स सॉफ्ट एंड सक्सेलेंट एट ऑल स्टेज ऑफ ग्रोथ. इसकी जो ग्रोथ की स्टेजेस हैं, देर आर डिफरेंट डिफरेंट ग्रोथ फेजेस फॉर बरसीम. तो इसकी जितनी भी फेजेस हैं, वो हर एक स्टेज में सॉफ्ट रहती है. इट्स क्वालिटी सॉफ्ट एंड सक्सेलेंट मीन्स इरिगेट करते रहोगे तो वाटर लॉगिंग भी हो जाएगा, तो मीन्स ये रूट रॉट नहीं होगा. आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. It can be grown without irrigation in areas with high water table and under waterlogged condition. As I told you before, waterlogged condition में mostly जब तुमने medicinal plants के बारे में पढ़ा था, like aromatic जो तुम्हारे plants थे, mentha and citronella, तो उनमें तुमने देखा था हाई वाटर लॉगिंग कंडीशन में क्या होता है, उनकी जो रूट्स होती है उनमें रूट रॉट हो जाता है, रूट सड़ जाती हैं. बट इन केस ऑफ बरसीम, वाटर लॉग अंडर वाटर लॉगिंग कंडीशन भी you can grow this berseem, that is Trifolium alexandrinum. So berseem is believed to be indigenous to Egypt.
So जो बरसीम है, that is indigenous to Egypt. It is originated in Egypt and it is indigenous to Egypt. It is main forage legume and it is cultivated in Syria and Persia. Persia and Syria में भी cultivation इसका होता है. So you can say the origin place of barsim is Egypt. And where it forms the principal green forage for horses, donkeys and camels. तो जो donkey है, donkeys है, horses and camels के लिए it is a good fodder for donkey, camel and horses. And it was introduced into India in 1904. Means first it was introduced in Egypt and then Syria and Persia, and in 1904 it was introduced in India. Okay, any doubt? Barsim is now a prominent fodder legume in irrigated areas of Punjab, Delhi, Rajasthan, and UP, and other parts of Western and Northern India. So basically, in India, it is irrigated. It is a prominent fodder legume in irrigated areas of पंजाब, दिल्ली, राजस्थान एंड यूपी. इंडिया में 1904 में इंट्रोड्यूस हुआ था, एंड इंट्रोड्यूस होने के बाद नाउ इट इज मींस prominent fodder legume in Punjab, Delhi, Rajasthan, and UP, and other parts of Western and Northern India. And it is widely grown both for fodder and green manure. Mostly हम जो इसका use करते हैं, it is used for fodder for animals and green manure for animals. And in peninsular India, it is less popular than Lucerne. बरसीम के बाद जो तुम्हारा सेकंड है, दैट इज ल्यूसन. तो ल्यूसन से कम पॉपुलर है ये. प्रत्युष कुमार तुम्हारा क्लासमेट है? Yes, ma'am. ओके. सो नाउ विल कम टू दिस सेकंड पॉइंट. अभी तक कोई डाउट है? एनी डाउट इन इंट्रोडक्शन ऑफ बरसीम? Okay, now description. Barsim is a low shrubby annual growing and its height is about 60 to 19 centimeter. इसमें ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाता था. ओके. So description. Barsim is a low shrubby annual growing 60 to 90 centimeter high, and the main succulent stem gives off branches terminating in 2 or 3 leaves. I'll show you the pic of barsim, तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है कि बरसीम क्या है. And these stems become fibrous after flowering stage, and leaves are small, oblong and rounded by extremities, and bright green and slightly hairy. So जो बरसीम है, that is a low shrubby annual growing जिसकी height होती है 60 to 90 centimeter, and इसका जो stem होता है, that is a type of succulent stem that gives off branches terminating in 3 or 2 leaves, and these stems become fibrous after flowering stage. I'll show you बरसीम. अगर इसमें पिक नहीं है तो I will. ये this is your बरसीम. Have you seen this? बरसीम देखा है कभी किसी ने? बरसीम. ओके, दिस इज योर बरसीम, जो कि एक फॉडर क्रॉप है. तो इसकी जो लीव्स है, दे आर स्मॉल, ओब्लॉन्ग एंड राउंडेड. जो इसकी जो एंड में होती है, दैट इज राउंड एंड ब्राइट ग्रीन एंड स्लाइटली हेयरी. इनका जो क्वालिटी होती है, दे आर ब्राइट ग्रीन इन कलर एंड स्लाइटली यू विल सी स्लाइटली hairs will be there in your leaf. Now climate, it prefers dry and cool climate and grown during Rabi season with high humidity, and cloudy days are not good, and temperature should be 25 to 30 degrees centigrade for germination and 35 to 37 for flowering. So climate should be dry and cool both. Means it prefers mostly dry and cool climate. बीच का जो होगा dry and cool के, that will not be preferable, and grown during rabi season. As you know, this is a rabi crop, तो rabi crop है तो rabi season में ही होगा. And cloudy days are not good, so dry and cool climate is good for the means growth and development of
Barsim, but it's not cloudy days are not good for Barsim. And temperature should be 25 to 30 for germination and 35 to 37 for flowering. Means germination के time पे there should be temperature 25 to 30 और 35 to 37 फॉर फ्लावरिंग. जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. एनी डाउट इन क्लाइमेट? नो डाउट. No, ma'am. Okay, now season and soil means कौन सा season means what will be the optimum season for your barsim, and what means which type of soil you require for the growth of barsim. So first season, rabi season, अक्टूबर टू नवंबर. अक्टूबर टू नवंबर जो सीजन है दैट इज गुड फॉर ग्रोथ ऑफ बरसीम. तो अक्टूबर नवंबर. एंड दैट इज कूल. कूल सीजन जो है अक्टूबर नवंबर. एंड सॉइल, ऑल सॉइल्स विद माइल्ड कोल्ड विंटर एंड इट ग्रोज वेल इन मीडियम टू हैवी सॉइल. मतलब मोस्टली जो है सॉइल सारी किसी भी टाइप की सॉइल में ये ग्रो कर सकता है, बट अगर प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे तो हाईली जो मीडियम और हैवी सॉइल है उस पर ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है. एंड एल्कली जो सॉइल है, एल्कली सॉइल जिनका पीएच 7 से ज्यादा होता है उसके लिए टॉलरेंट है. मीन्स इट कैन ऑल्सो ग्रो इन एल्कली सॉइल. एंड क्ले लोम सॉइल रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस सॉइल मस्ट बी वेल ड्रेन्ड. तो जो क्ले लॉम सॉइल है दैट इज अ टाइप ऑफ सॉइल. तुमने पढ़ा होगा फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में. सो जो क्ले लोम सॉइल है विच इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, वहां पे भी जो तुम्हारा बरसीम अच्छे से ग्रो करता है. एंड सॉइल मस्ट बी वेल ड्रेन्ड. एंड जो सॉइल रिक्वायरमेंट है दैट शुड बी वेल ड्रेन्ड. अभी तक कोई डाउट है सीजन एंड सॉइल में? सीजन शुड बी अक्टूबर टू नवंबर एंड soil should be clay loam soil which is rich in calcium and phosphorus, and heavy soil, medium to heavy soil. Okay. Okay, next is varieties of your barsim. There are some improved varieties like Pusa Giant and IGFR S991, UPB 101, 103, 104 and 105. तो जो इसके नॉमेनक्लेचर है दैट इज जैसे IGFR है, IGFR देयर शुड बी, मतलब देयर मस्ट बी सम इंस्टीट्यूट का नेम हो सकता है या वैरायटी का नेम हो सकता है. तो नॉमेनक्लेचर पे डिपेंड करता है. जैसे ICR की एक ब्रांच है PUSA, पूसा, जो कि दिल्ली में है, वहां पे इसका ओरिजिन हुआ है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पूसा जियांट. इट इज अ, मतलब सबसे बड़ी वैरायटी है तो उसका नाम पूसा जियांट है. तो IGFRS, तो वैरायटीज के जो नेम्स है तुम्हें एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे. वैरायटीज मेसावी, that is also a variety. Misavi, it is a fast growing variety and attains plant height of about 75 centimeter at flower initiation stage. तो जो मेसावी वैरायटी है that is a fast growing variety. बाकी varieties के comparison में that is a type of fast growing variety and attains plant height of about 75 centimeter at flowering initiation stage. तो इसकी जो height है that is 75 centimeter. On an average it gives 500 to 600 quintals green fodder and 100 to 125 quintals dry matter yields per hectare in about 5 cuttings. एज यू नो जो फाइनल प्रोडक्ट है तुम्हारा वो उसके टाइप पे डिपेंड करता है. फर्स्ट में वी वर टॉकिंग अबाउट मेडिसिनल एंड एरोमेटिक वेराइटीज. तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक वेराइटीज में जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट था दैट इज ऑयल. ऑयल को तुम मींस लास्ट में कंक्लूड कर रहे थे. सो इट इज अ फॉडर वेराइटी. तो इसमें जो तुम्हारा फाइनल हार्वेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट होगा दैट विल बी योर ग्रीन फॉडर और ग्रीन मैन्योर. सो इसका जो ग्रीन मैन्योर है दैट इज 500 to 600 क्विंटल्स and 100 to 110. अगर ग्रीन इफ यू आर कलेक्टिंग ग्रीन मैन्योर तो उसका है 500 to 600 क्विंटल्स पर हेक्टेयर. एंड अगर तुम्हारा
ड्राई मैन्योर है, दैट इज 100 to 125 क्विंटल्स ड्राई मैटर्स पर हेक्टेयर इन अबाउट 5 कटिंग्स। ये जो तुम्हारा टोटल है दैट इज ऑफ 5 कटिंग। It contains about 20% crude protein on dry matter basis at early flowering stage। तो इसकी जो अर्ली फ्लावरिंग स्टेज में है, इट कंटेन्स अबाउट, उसमें 25% क्रूड प्रोटीन होता है फॉर एनिमल्स। सो दिस इज अ गुड वेराइटी फॉर एनिमल्स। नाउ field preparation and seed rate। First is field preparation, means हम how we will prepare our field for बरसीम के लिए, and how what should be the seed rate per hectare, how much kilogram per hectare for sowing, and what should be space। So field preparation, fine and smooth seed bed free from clots। तो इसका जो फील्ड प्रिपरेशन है उसके लिए, जो सीड बेड है मीन्स जो तुम्हारा फील्ड है वो स्मूथ होना चाहिए और उसमें कोई क्लॉट्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पोटैटो में तुम्हें बताया था कैसा होना चाहिए, कुछ याद है पोटैटो के लिए फील्ड कैसा चाहिए था? देयर वर सम टाइप्स, सम टर्म्स। पोटैटो को फील्ड्स के लिए कुछ टर्म्स थे, किस टाइप का फील्ड बेड होना चाहिए, एनी आइडिया? स्कैटर्ड था? फॉर्म करते हैं मैम उसमें। कौन सा? मैम एक रो फॉर्म करते हैं, उसके बाद सॉइल को मतलब ये पोटैटो को लगाते हैं मैम। हाँ, और एक तो रो वाला था और दूसरा भी था, एक और टर्म था। रीजन फरो मेथड से। कौन सा? रीजन फरो। हाँ, फरो, फरो टाइप्स का था। तो दिस दैट वाज द टाइप ऑफ पोटैटो के फील्ड के लिए। बट इन केस ऑफ बरसीम यू यू रिक्वायर फाइन एंड स्मूथ सीड बेड, उसमें कोई फरो नहीं होना चाहिए, एंड मींस कोई भी रोज नहीं होना चाहिए, ओनली सीड बेड फ्री फ्रॉम क्लॉट्स, फ्री ऑफ टर्माइट्स एंड एंड्स। वो तो हर किसी का होता है, टर्माइट्स एंड एंड्स, एंड द लैंड शुड बी वेल टिल्ड, लेवल्ड एंड शुड बी फ्री फ्रॉम weeds। दैट इज ऑब्वियस फॉर ऑल क्रॉप्स, बट इसमें स्पेसिफिक पॉइंट है स्मूथ एंड फ्री, स्मूथ एंड सीड बेड फ्री फ्रॉम क्लॉट्स। सो देयर शुड नॉट बी एनी क्लॉड, कोई भी फरो स्टाइल नहीं है, ओनली फ्री बेड है। एंड सीड रेट 20 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर इज नीडेड फॉर सोइंग। तो इसका जो सोइंग के लिए सीड रेट है पर हेक्टेयर, दैट इज 20 to 25 kg सीड विल रिक्वायर फॉर one for hectare, 1 hectare। And spacing should be 25 centimeter apart by drilling and then plank। तो इसकी जो स्पेसिंग है, एक दो सीड के बीच की स्पेसिंग है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो दिस इज अबाउट फील्ड प्रिपरेशन एंड सीड रेट। नाउ सोइंग कैसे करते हैं? अक्टूबर, इसकी जो सोइंग है मोस्टली मैंने बताया था, जो सीजन है अक्टूबर टू नवंबर इज गुड फॉर सोइंग ऑफ बरसीम। तो इसकी सोइंग अक्टूबर में करते हैं। एंड लाइन सोइंग होती है जिसको हम ब्रॉडकास्टिंग भी बोलते हैं। एंड सिंस सीड आर स्मॉल इन साइज मिक्स विद मस्टर्ड एंड सोन। बरसीम की क्वालिटी होती है, मोस्टली जो हम क्रॉप ग्रो करते हैं सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं, बट बरसीम के साथ यू कैन मिक्स सम टाइप ऑफ क्रॉप, जैसे इसमें मिक्स किया है मस्टर्ड। तो ये एक क्वालिटी है बरसीम की कि तुम इसे दूसरी क्रॉप के साथ मिक्स करके सो कर सकते हो। And sowing method है flooded field in dry field and as relay cropping in rice field। तो राइस के साथ भी you can also mix with rice, you can also mix with mustard। एंड फ्लडेड फील्ड जो है, अगर तुम राइस के साथ मिक्स कर रहे हो, एज यू नो जो राइस की जो तुम्हारी खेती होती है दैट इज ऑन फ्लडेड फील्ड, तो उसके साथ यू कैन मिक्स। ड्राई फील्ड में भी मिक्स कर सकते हो, कॉज एज यू नो जो मस्टर्ड है उसकी जो खेती होती है दैट इज इन ड्राई फील्ड। So you can mix with mustard. If you are mixing with mustard, so it will be in dry field. If you are mixing with rice, it will be in flooded field। So this is about sowing। And now inoculation. If berseem is going to be seeded for the first time in any field, the seed must be inoculated with rhizobium culture, which is very essential for its growth। तो इसकी जो है, अगर फर्स्ट टाइम वी आर ग्रोइंग एनी टाइप ऑफ बरसीम, तो इसकी जो इनोकुलेशन होगा राइजोबियम कल्चर के साथ होना चाहिए। राइजोबियम कल्चर मींस हम जिस भी लेग्यूम या जिस भी चीज के साथ ग्रो कर रहे हैं, देयर शुड बी राइजोबियम इन इट्स रूट्स। तो जो मस्टर्ड है उसमें भी राइजोबियम होता है, राइस में भी होता है।
and method of inoculation. और अगर तुम्हारा उसमें नहीं है तो तुम्हें राइजोबियम कल्चर solution भी you can mix. So how you will inoculate rhizobium culture? So there is a method of inoculation to mix to inoculate the seed of rice, seed of barsim in rhizobium culture. So method of inoculation है prepare 10% solution of and heat it to boiling point and then cool at room temperature. तो इसका क्या करना है, तुम्हें 10% सोल्यूशन है उसको मिक्स पहले बॉईल करना है और फिर कूल करना है रूम टेम्परेचर पे एंड स्प्रिंकल अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन ओवर द सीड्स टू मॉइस्ट देम नाइसली. उसके बाद जो है तुम्हारा जो कुछ सोल्यूशन का है उसको स्प्रिंकल करना है ओवर द सीड टू मॉइस्ट देम नाइसली and spread thin layer of culture over treated seed and mix thoroughly. Dry मीन्स तुम्हें क्या करना है, पहले राइजोबियम का जो कल्चर है उसको एक 10% सोल्यूशन बनाना है एंड देन यू हैव टू मिक्स योर सोल्यूशन इन सीड और जब तक कि सीड मॉइस्ट ना हो जाए. एंड उसके बाद जो है जो स्प्रेड थिन लेयर ऑफ कल्चर over the treated seed and mix thoroughly and dry the culture treated seed in shade before sowing. तो तुम्हें क्या करना है, राइजोबियम का जो तुम्हारा कल्चर है तुम्हें मिक्स करना है 10% सोल्यूशन में सीड्स को और यू कैन मींस स्प्रेड थिन लेयर ऑफ कल्चर आल्सो एंड उसके बाद तुम्हें सोइंग करना है. एंड मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है. फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक मैन्योर. ऑर्गेनिक मैन्योर, इफ यू आर यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर, इसका एक अच्छा एग्जांपल है फार्म यार्ड मैन्योर. तो वो तुम यूज करोगे 15 to 20 टन्स पर हेक्टेयर एंड रिस्पॉन्ड्स वेल टू फॉस्फोरस. फॉस्फोरस का अच्छा रिस्पॉन्स करता है. एक लास्ट में पॉइंट भी आया था जब हम सॉइल की बात कर रहे थे तो उसमें हाईली फॉस्फोरस रिच सॉइल एंड 20 to 40 kilogram nitrogen, phosphorus and potassium per hectare and molybdenum 1 kg per hectare. So this is the quantity of nutrient. And weed management के लिए अगर तुम weedicide यूज करते हो तो weedicide के लिए तुम्हारा weed free condition up to 25 DAS. What do you mean by DAS? days after sowing. डेज आफ्टर सोइंग. तो व्हाट डू यू मीन बाय 25 डेज आफ्टर सोइंग में क्या करोगे तुम वीड मैनेजमेंट, क्योंकि उससे पहले आएगा नहीं. ओके, डेज आफ्टर सोइंग, राइट. डीएस का जो फुल फॉर्म है दैट इज डेज आफ्टर सोइंग. तो वीट फ्री कंडीशन अप टू 25 डेज आफ्टर सोइंग एंड टू हैंड वीडिंग एट 21 डेज आफ्टर सोइंग. तो फर्स्ट तुम जो करोगे 21 डेज आफ्टर सोइंग में हैंड वीडिंग करोगे एंड 35 और 40 डेज आफ्टर सोइंग में भी करोगे. सो वीडिंग का जो वीड मैनेजमेंट के लिए वीडीसाइड नहीं यूज करते हो तुम, हैंड वीडिंग यूज करते हो. एंड वाटर मैनेजमेंट, interval of irrigation during October 10 days, November to Jan 15 days and thereafter 8 to 10 days, and totally 10 to 12 irrigation are required for बरसीम. तो इंटरवल ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग अक्टूबर के 10 डेज के इंटरवल में तुम इरिगेट करते हो, डेली इरिगेशन की जरूरत नहीं है. एंड नवंबर टू जैन में 15 डेज करते हो आफ्टर 10 to 8 to 10 डेज. एंड टोटली जो है इरिगेशन एंड रिक्वायरमेंट होती है टिल हार्वेस्टिंग दैट इज 10 to 12 इरिगेशन. दिस इज योर बरसीम, दैट इज अ फॉडर क्रॉप. नाउ harvesting, first cutting 40 to 45 days after sowing and subsequent cutting at an interval of 20 to 25 days after sowing. subsequent cutting इसीलिए करनी है cause अभी बताया था जो क्रूड प्रोटीन है उसकी मींस जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उस टाइम पे क्रूड प्रोटीन ज्यादा मिलता है. एंड नंबर ऑफ हार्वेस्ट डिपेंड्स ऑन विंटर सीजन एंड टोटल कटिंग 6 to 8 per year एंड 50 to 10 टन ग्रीन फॉडर तुम्हारा लास्ट में हार्वेस्ट रिजल्ट है. एंड नाउ yield कितनी है, द फर्स्ट कटिंग इज ऑब्टेन्ड यूजुअली 60 days after sowing and subsequent cutting 25 to 30 days. And in the mid hill zone during winter, interval between cutting is about 50 to 60 days. In all, 5 to 6 cuttings may be obtained, and on an average, nearly 550 quintals of green fodder per hectare may be obtained.
सो ग्रीन फॉडर जो है 80 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, सीड यील्ड है 300 to 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ओके, सो यील्ड फर्स्ट कटिंग जो है मोस्टली 60 डेज में होती है आफ्टर सोइंग, and interval 25 to 30 days, and mid-hill zone during winter is 50 to 60 days, and 5 to 6 cutting may be obtained, and total जो इसका conclusion है, ग्रीन जो फॉडर है दैट इज 60 to 80 टन पर हेक्टेयर पर ईयर। एक साल में एक हेक्टेयर में तुम्हारा 60 to 80 टन यील्ड होता है, एंड सीड यील्ड इज 300 to 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मींस सीड यील्ड इज 300 to 500 एक हेक्टेयर में kilogram. Now seed production. The final cutting should not be taken later than the end of Feb. If crop is to be left for seed purpose, Kasni and other weeds should be eradicated and irrigate frequently during the formation and ripening of seed. On an average 2.5 क्विंटल seed may be obtained per hectare. तो seed production कैसे करते हैं? सीड प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, तुम्हें फाइनल कटिंग जो फैब में होती है वो नहीं करनी है, सीड पर्पस के लिए रखनी है। तो जो इसके फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स जब बहुत ज्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो वो सीड बन जाते हैं, एंड जो सीड है उसकी सीड की क्वांटिटी है दैट इज 2.5 क्विंटल सीड। एनी डाउट इन बरसीम? नो मैम। ओके, सो एज आई टोल्ड यू आई हैव माय यूट्यूब चैनल, उसमें स्पेशली मेरा जो है क्रॉप, राबी क्रॉप के लिए है, तो यू कैन सी ओवर देयर। So no doubt in Barsim. Or I can show you. Wait. If you want to see, if you are interested, I can show you. You want to see? यस मैम। Okay. So sorghum is a crop. Sorghum जो है sorghum is a type of crop जो कि फॉडर और ग्रीन मैन्योर के लिए हम यूज करते हैं। तो ज्यादा नहीं बनाया, आई हैव ओनली 2 वीडियोस। तो अच्छा ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी। तो दिस इज योर sorghum and this is your French bean. French bean भी तुम्हें पढ़ना है, and this is your sorghum. So you can see this video. I have just tried for this sorghum. इतना अच्छा नहीं है, but you will means तुमको थोड़ा बहुत knowledge मिलेगी practically. So you can see this video. Okay, I'll share you the link. You can see, ठीक है? So any doubt in Barsi? Yes or no? Any question regarding Barsi? तुम्हारा जो राबी क्रॉप में है देर इज ओनली 3 फोरेज क्रॉप्स, ल्यूसन, ओट एंड बरसीम। so you can see this। और बाकी we will study about ल्यूसन in next class। I was thinking कि आज हो जाएगा, but 1:30, it's already 1:30। I think class 1:30 तक है, और 1:40। so I'm sending you notes of this। एक बार तुम, और if you are having any doubt you can ask। यस और नो कुछ तो रिस्पॉन्स कर दिया करो। नो मैम, कोई डाउट्स नहीं। ओके, so I'm sending you this PPT। or I will send you this link of sorghum also। This is also a type of feed and fodder crop for animals। First I'm sending you Barsim। Barsim। ओके, मैंने सेंड कर दिया बरसीम। एंड
I have sent you this link also. You can see. Okay, class. Thank you. थैंक यू मैम. हेलो. Yes, who's this?